दुआ करना मुझे लड़की अच्छी मिले। भैया इसको अपनी लड़की कौन देगा? शराब। Bro, see you at the ground tonight. It's gonna be a tough match today. Okay. अच्छा listen, bring those sandwiches your sister made. Okay. अब्दुल्ला यार सुकून सा मिल गया। Once you've done praying, it gives you a whole different feeling. So true. ऐसा लग रहा है कि कंधों पे से बर्डन खत्म हो गया। Burden नहीं, it gives you a feeling of contentment and peace. Let's go. कहाँ रह गए थे तुम? इतनी देर क्यों लगा दी? हमने 2 मैचेस खेल भी लिए। यार अम्मी ने रोक लिया था। She was like first pray, then go out to play. चलो। यार कुछ है खाने को? I'm starving man. यार I got those yummy sandwiches my sister makes. Really? ओ यार। इसको क्या हो गया? शाजिब। अरे यार मुझे नहीं खाना। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? What's up? I'm so confused, man. You know you can tell us anything. Come on, let it out. Come on जानी, बोल देना, क्या टेंशन है? ऐसा है क्या? इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट करा? बता ना। Guys, I've been thinking about some stuff, and it's making me feel chaotic. अच्छा, तो फिर हम कब मिल रहे हैं भाभी से? Shut up यार, सीरियस बात है। शाजिब बताओ क्या हुआ है? I've been looking into every single thing happening around in this universe deeply since I started medical college. मतलब मेरे अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं यार about the existence of God and what Islam talks about. What? दिमाग खराब हो गया तेरा? Hamza, let him speak. Okay, Shazib, go on. यार this topic of evolution has literally baffled me. मतलब इस्लाम हमें बताता है कि हम सब हज़रत आदम की औलाद हैं, but my teacher in the class, he tells me a whole different story. He says we came from animal and that too chimpanzees. Bro, it's just a theory. Scientists who aren't even religious have objected to it. That's so stupid, man. You guys don't know anything. Evolution has been proven and no one can deny it. It would be logical for you to say that it never happened. Okay. और कोई बात है? अबे बोल दे भाई। यार तलहा, do you remember that guy who was banging on the street? Yeah. What about him? Now tell me, if God were to exist, why would he leave him alone like that? Why would he not provide equal resources to all of us in order to judge equally? To be honest, I do think about these things as well. And sometimes they just don't make sense. You know what? Our school has a whole society where they cater to such questions. Maybe we could find our answers there. ओह, देखो तो किसको टाइम मिला है हमारे लिए। What's up? We are discussing something important. Okay guys, back to the topic please. Leave it, man. Just a bunch of questions Shazib and I happen to have in our mind. They must have crossed your mind too, right? Okay. They say Allah loves us 70 times more than our mom. Name one heck of a mom who would throw her kids in fire just for something wrong they have done. Yo Hamza, you know that sheikh we follow on Instagram? वो बंदा हर सवाल का डिटेल जवाब देते हैं। You should contact them. Okay guys, I need to go home. I'm too tired for this discussion. Boring. यार मेरी अम्मी की भी कॉल आ रही है. I need to go. कौन सी वाली अम्मा? Shut up यार. By the way, Yahya, you are a douchebag. I need to complete my point. यार कल करते हैं बात, पक्का. प्रॉमिस कल करेंगे. चलो बेस्ट है. ब्रेकफास्ट कल अब्दुल्ला भाई की तरफ से. किस खुशी में?
चलो कल ब्रेकफास्ट के टेबल पे मिलते हैं. कॉन्फ्रेंस विद कंफ्यूज शाहजेब. बेस्ट है फिर. चलो फिर चलते हैं. ओके बॉयज. ओके ब्रो. ओके ब्रो, टेक केयर. अल्लाह हाफिज. See you. So guys, we had to discuss something really important. और खाना भी अच्छा मिल जाता है ना यहाँ. Abdullah, for the love of food, please put your laptop away. What's so urgent that has to be done right now? Bro, I'm writing an email to Shane, and I'm sure helping your friends will know some. Yeah, as you wish. What a surprise! खैरियत, आज पूरी गैंग सुबह सुबह कैसे जमा हो गई? अंकल शाहजेब के सर पे एथिज्म का भूत सवार हो गया है और ये हमारे बाबा पीर अब्दुल्ला शाह साहब शाहजेब का भूत उतारेंगे और वो भी अपने इस करमाती लैपटॉप से. What? दिमाग हिल गया है? Look at yourselves. अपनी एज देखो और अपनी बातें. नहीं अंकल, असल में इट्स जस्ट अ Stop this nonsense. Abdullah, just focus on your studies. Got it? जी बाबा. दिमाग खराब हो गया. Speak up guys. क्या लिखूं मैं? First we need to ask him if Allah loves us and has created us, then why would he throw us in hellfire? Bro, watch out. Sorry. Shut up guys. मुझे बताओ क्या लिखना है यहाँ पे? The concept of Islam and the theory of evolution. Let's see what he has to say. Guys, I have another question. If we are his favorite being, then why we are punished? I mean, weren't you his favorites earlier? वो फेवरेट हो या हम? How does that matter? What matter to me is Aisha auntie makes really good food. Wine. Shahzeb, you continue. If Allah loves us, then why was the poor man hungry? Why is there no equality? I mean, these kuffar have everything they need, literally everything. But Muslims are crushed, oppressed all over the world. And I think that is it. Should I send it? Obviously, yaar, send it. Chill out, bro. I have heard he is very responsive. वो फोन पे भी बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं. Let's see. इस टॉपिक में बात नहीं कर सकते तो मैं क्या करूं जो मुझे खतरा ना हो. फिर मुझे ख्याल आया यार मैं एथियस्ट का मजाक उड़ाता हूं. ये मुझे बदुआ भी नहीं दे सकते. क्या कहेंगे? न्यूटन इसकी ग्रेविटी खत्म कर दे. इसका एफ स्क्वायर कर दे. क्या कहेंगे मेरा ये? यूनिवर्सिटी में एक दोस्त थे जो थे तो एथियस्ट मगर उनका नाम था मोमिन. क्या नाम रखूं? मैंने कहा यार क्योंकि आप नेचर को ही सब कुछ समझते हो तो अपना नाम केला रखें. ये डिफेंस आपको पता है कराची में ब्रिज है. ब्रिज के इस पार डिफेंस है, उस पार ऑफेंस है. Oh, Sheikh is online. Wait, I'm going to call Shahzeb. जाना. खुदा गारत करे यार तुम लोगों को. यार शाहजेब अगर एथिस्ट हो गया साला बद्दुआ कैसे देगा? बोलेगा न्यूटन तेरे पर ग्रेविटी नहीं चलती. Guys, Sheikh is online. Come inside. Fast, fast, fast. अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. I contacted you via email. Thank you so much for your time. No, that's not an issue. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है नौजवानों से बात करके. Sheikh, these are my friends. Shazeb, Hamza, Talha and Yahya. We go to medical college together. But they have some confusion. Oh, okay. That's good. Alhamdulillah. Everyone has questions, I guess. Shoot them. Shazeb, you can. Assalamu alaikum, Sheikh. Walaikum assalam wa rahmatullah. Shazib, how are you? I'm good. Sheikh, I have a question. If Allah subhanahu wa ta'ala loves us more than our moms and He is the only one who created us, then why would He put us in hellfire for doing something bad? नाइस क्वेश्चन शाजिब. मेरे ख्याल से ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी नौजवानों के जहन में ये सवाल आता है. अच्छा, एक बड़ी अजीब सी बात है यहाँ पे. वो ये है कि हम चाहते तो ये हैं कि हमारी मर्ज़ी की ज़िंदगी है. कभी हमने ये सोचा है कि क्या हम अपनी मर्ज़ी से दुनिया में आए और क्या हम अपनी मर्ज़ी से दुनिया से जाएंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं है. तो जब हम ना अपनी मर्ज़ी से दुनिया में आए ना अपनी मर्ज़ी से जाएंगे तो हमारा अंजाम हमारी ही मर्ज़ी से क्यों होगा? जब हमें ये पता चल गया कि अल्लाह ताला बेनियाज हैं और अल्लाह ताला को हमारी ज़रूरत नहीं है, तो अब क्वेश्चन की तरह अगर हम आते हैं तो ये बात तो है ही नहीं कि अल्लाह ताला हर किसी को जहन्नम में डाल लें. अल्लाह ताला सिर्फ़ उन मखसूस लोगों को जहन्नम में डालें जिन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है. अल्लाह ताला कुरान में बड़ा साफ साफ फरमा रहे हैं कि जन्नत बनाई है मोमिनों के लिए और जहन्नम बनाई है उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला की बात नहीं मानते. फॉर इंस्टेंस यूँ देखें कि जिस तरह आप लोग मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप लोगों के एग्ज़ाम्स होते हैं तो तमाम तलबा उसके अंदर जो है वो टेस्ट देते हैं. अच्छा, पोजीशन क्या होती है कि इसके अंदर कुछ लोग पास हो जाते हैं, कुछ लोग फ़ेल हो जाते हैं. अब जो पास हो गए वो तो पास हो गए, उनके पेरेंट्स भी खुश होते हैं, यूनिवर्सिटी उनको सर्टिफिकेट देती है, सब कुछ होता है. लेकिन जो फ़ेल होते हैं तो उनकी फ़ेल होने की रीज़न क्या होती है? उनकी अपनी मेहनत. इसके साथ साथ अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम भटक गए, अगर तुम टेस्ट के अंदर सही नहीं जा रहे तो फिर माफ़ी मांग लो, सॉरी कर लो. क्या यूनिवर्सिटी में फ़ेल होने के बाद सॉरी करने से मामलात हल हो जाते हैं? ऐसा नहीं है. लेकिन क्योंकि अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है तो हमें बार बार चांस दे रहा है कि तुमसे गलती हो गई, तुम फ़ेल हो रहे हो, नहीं, माफ़ी मांग लो, वापसी आ जाओ, मैं माफ़ कर दूँगा, सिरे से सारे गुनाह हटा दूँगा, दोबारा से स्टार्ट करो, दोबारा से स्टार्ट करो. अल्लाह ताला की ये मोहब्बत हमारे लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है. तो जो जैसे अपने इम्तिहान में पास होता है या अपने टेस्ट में कामयाब होता है तो अल्लाह ताला इसी तरीके से उसके साथ हशर करते हैं. अस्सलाम वालेकुम शेख. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह ताला. एंड व्हाट वुड योर क्वेश्चन बी? If we are Allah's favorite being, then why there are so many people poor? Why there is no justice? There is no equality. These kuffars have everything. Literally everything. And we believers? Except for that hunger and pain. Why is like that? Wow, what a question. This is something really trending nowadays. एंड मुझे यही लगता है कि हम सब अपने आप को, स्पेशली मुसलमान, हम लोग अपने आप को बहुत डिग्रेड करते हैं इस मामले में, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट का थोड़ा सा डिफरेंस है. वो ये कि पूरी दुनिया में पावर्टी है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान ममालिक में है. ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और ये सिर्फ़ हमारे सीरिया, बर्मा वगैरह के अंदर नहीं है. बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स के हैं, जैसे अफ्रीका है, मैक्सिको है, लेकिन यहाँ पे भी पावर्टी लेवल्स बहुत हाई हैं. एक और बात समझने की यहाँ पे ज़रूरत है, वो ये है कि दुनियावी तरक्की के लिए दुनियावी मेहनत भी ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि सिर्फ़ अब दीन पे चलें, सिर्फ़ मुसल्ला या सिर्फ़ अस्कार, सिर्फ़ कुरान और सिर्फ़ नमाज़ पढ़ें तो आपका मुल्क तरक्की कर जाएगा. नहीं, मुल्क तरक्की करता है जब आपकी गवर्नमेंट है वो प्रॉपर तरीके से ईमानदारी से काम कर रही हो. और अगर ये हम डिस्ट्रीब्यूशन पैसों की माशरे में सही तरीके से कर दें तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा और पूरा माशरा इक्वल लेवल पे ऊपर जाएगा. लेकिन ऑन दी अदर हैंड अल्लाह ताला ने दुनिया में स्टैंडर्ड्स बनाए हैं. और वो स्टैंडर्ड्स किस तरह? वो ये है कि कुछ लोगों को अमीर, कुछ लोगों को मीडियोकर्स बनाया है, कुछ लोगों को गरीब बनाया है. और ये
दुनिया का या मुल्क का सिलसिला चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। वरना अगर तमाम इंसान ही अमीर हो जाएं तो एक दूसरे के लिए कोई काम भी ना करें तो दुनिया का रहन सहन ही तब्दील हो जाएगा। Yeah, that's true. But I have another question. जी प्लीज़ आस्क। Sheikh, we study evolution, right? But Islam has a different approach as to how human being came into existence. Can you please explain it? वेरी गुड क्वेश्चन। और मैं कहूँगा कि साइंस के एतबार से हम देखा जाए तो हमें आज के दौर पे बहुत फ़ायदा हुआ है साइंस से। और मैं आप अभी बात कर रहे हैं ये भी सारी साइंसी तहकीकात के बाद ही का नतीजा है। लेकिन जिस तरह यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स हैं इस सवाल को अगर मैं देखूँ, एक हमारा मजहबी एस्पेक्ट है एवोल्यूशन को देखने का और एक साइंस का एस्पेक्ट है एवोल्यूशन को देखने का। एक चीज़ यहाँ पे जो है ना बहुत जहन में रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि आज तक कुरान की जो स्टेटमेंट्स हैं वो कभी चेंज नहीं हुई, लेकिन साइंस ने आज से 20 साल पहले जो कहा, 50 साल पहले जो कहा, वो आज के दौर में चेंज हो चुका है। तो आई होप कि ये वाली एवोल्यूशन की थ्योरी जो हम अभी सुनेंगे और जो डिस्कस करेंगे वो भी साइंस की कुछ टाइम में हो सकता है चेंज हो जाए। और बहुत सारी जगहों पे तो लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं इस बात को, बहुत कॉमन सी बात है। अच्छा, दूसरे लिहाज से अगर हम देखें कि इस्लाम के एतबार से वी एज मुस्लिम्स हम ऑलरेडी एक्सेप्ट करते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमें तो ऑलरेडी इसके बारे में अल्लाह ताला कुरान में भी बता चुके हैं कि अल्लाह ताला ने पहले आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया और डायरेक्ट अशरफुल मखलूक़ात पैदा की। तो अशरफुल मखलूक़ात किसी बंदर से डिराइव होगी तो फिर वो अशरफुल मखलूक़ात किस तरह होगी जब वो किसी और जिन्स से या किसी और क्रिएशन से डिराइव होकर पैदा होगी। खैर वो तो पूरा एक टॉपिक है, बट वी एज़ मुस्लिम्स वी हैव एक्सेप्टेड कि हम इंसान है और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उन्हीं की औलादों में से और उन्हीं की जनरेशन में से हमारी आज की एक जनरेशन है। ये डिस्कशन क्या हमारे लिए फ्रूटफुल है, रिस्पेक्टेड कि आज अगर हमें ये भी समझ आ जाए कि हम बंदर से डिराइव हुए हैं इंसान या इंसान की तरफ से बंदर हुए हैं, क्या ये फ्रूटफुल है किसी लिहाज से कि हमें आखिरत में इसका कोई अजर मिलेगा कि हमें ये मालूम था कि हम बंदर से बन के आए हैं या हम डायरेक्टली इंसान हैं? तो दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। जहाँ तक बात रही कि अल्लाह ताला ने इंसान से बंदर बनाया, तो यहाँ पे तो बहुत क्लियरली है कि अल्लाह ताला ने उनको अज़ाब दिया था। और इस एस्पेक्ट से हमें एक और चीज़ भी मालूम होती है कि जब अल्लाह ताला अज़ाब दे रहे हैं तो इंसान को अपने से कम दर्जे पे लेके जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तो क्या वो बंदर से इंसान बनाएंगे? ऐसा थोड़ा सा सोचना भी जो है वो लॉजिकली डिफ़िकल्ट हो जाता है। I totally agree with Sheikh's statement. Wait. Sheikh, I have another question. If we were made monkeys, once as Allah says in the Quran, then maybe we did come from monkeys? Exactly, यही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को बंदर बनाया, लेकिन why was that? वो कोई एवोल्यूशन थोड़ी था, वो अल्लाह ताला ने देर एंड देन अजाब देना था, तो इंसान को बंदर की शक्ल दे दी। इससे ये पता चला कि इन बंदरों का दर्जा वो इंसान से बहुत कम है और एक बदतरीन दर्जा है। तो एक बदतरीन से इंसान अशरफुल मखलूक़ात कैसे बन सकता है? लेकिन फिर मैं वहीं पे आऊँगा उसी बात के ऊपर कि डज़ दैट हैज़ एनी अफेक्ट कि हम बंदर से बने हैं या बंदर से नहीं। दैट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट डिबेट। लेकिन बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है, और इंसान रहते हुए एज़ मुस्लिम्स हमें जो अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है कि इंसान को मिट्टी से पैदा किया और डायरेक्टली इंसान पैदा किया, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। और उसके बाद हमें जो अहकामात दिए, नबी भेजे, कुरान भेजा हिदायत के लिए, दिस इज़ आवर मेन पर्पस इन लाइफ। Jazakallah Sheikh. You welcome, Abdullah. It was a great pleasure. Guys, any questions? इन दोनों की शक्लों से तो लग रहा है इनको जवाब मिल गया। Well, thank you so much, Sheikh, for your time and fruitful discussion. Jazakallah for you, Abdullah, for contacting me and bringing your friends along. बहुत खुशी होती है आप जैसे नौजवान जब अपने सवाल और अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। और गोइंग फॉरवर्ड मैं यही एक मशवरा देना चाहूँगा, दिस इज़ अ सजेशन, कि साथ साथ आप लोग भी जो है वो कुरान की स्टडी और अपने रिलीजन की स्टडी करते रहा करें, रिसर्च करते रहा करें,
बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन जहाँ पे आपको कहीं किसी किस्म की डिफ़िकल्टी फ़ेस करने पड़ी तो किसी प्रॉपर आलिम दीन से जाके अपनी कन्फ्यूजन्स को, अपने सवाल को क्लियर किया करें। तो आई होप कि आज का सेशन बहुत फ्रूटफुल रहा, और आगे भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपके फ्रेंड्स को कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे, तो ऑलवेज़ वेलकम इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Are you okay? चाय बना क्या? Sure. Yeah, मेरे लिए green tea है। क्या तुम यहाँ के बाद की ज़िंदगी पे यकीन रखते हो? क्यों नहीं, यकीनन यहाँ के बाद कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। मुमकिन है कि हम यहाँ इसलिए हों कि खुद को आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार करें। फजूल बात, यहाँ के बाद की कोई ज़िंदगी नहीं। भला वो किस किस्म की ज़िंदगी हो सकती है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ यहाँ से ज़्यादा रोशनी होगी। हो सकता है कि हम वहाँ अपने पैरों से चलें और अपने मुंह से खाएं। मुमकिन है कि वहाँ हमारे पास ऐसे हवास हों जिनके बारे में हमें इल्म ही नहीं है। क्या बेवकूफ़ाना बात है। पैरों से चलना मुमकिन ही नहीं और अपने मुंह से खाना मजाक। नाव से जुड़ी नाली के ज़रिए हमें खुराक मिलती है। खैर, मेरा ख्याल है कि वहाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। बिल्कुल फजूल। अच्छा चलो फिर ये बताओ, अगर यहाँ की ज़िंदगी के बाद भी कोई ज़िंदगी है तो फिर वहाँ से कभी कोई वापस क्यों नहीं आया? यहाँ की ज़िंदगी खात्मे का नाम है और कुछ भी नहीं। मैं ये सब नहीं जानता, लेकिन मुझे यकीन है कि यहाँ के बाद हमारी मुलाकात हमारी माँ से ज़रूर होगी और वही हमारी देखभाल करेगी जैसा कि अभी करती है। माँ? ओह, क्या तुम वाकई माँ पर यकीन रखते हो? हाँ। तो ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर माँ वजूद रखती होती तो वो हमें नजर आती, मगर वो कहाँ है? कहीं भी तो नहीं। माँ हमारे चारों तरफ है, हर जानिब। हम भी उसी के हैं और हमें उसी के पास जाना है। माँ के बगैर ये दुनिया, ये जहां और हम किसी का वजूद नहीं है मेरे भाई। माँ मुझे तो नजर नहीं आती, लिहाजा अक्ल यही कहती है कि माँ का कोई वजूद नहीं। ये तुम जैसे बेवकूफ़ों की सोच है। तुम गौर तो करो, कभी कभी उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। यहीं ऊपर से उसकी मोहब्बत भरी आवाज़ सुनाई देती है। तुम देख लेना, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि हम उसको देख लेंगे। हाँ, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम अगली ज़िंदगी में मुंतकिल हो जाएंगे, जो अभी शायद हमें अपनी महदूद अकल के साथ समझ आने वाली भी नहीं है। और ये भी हो सकता है कि आने वाली दुनिया में जाने के बाद एक नई दुनिया का सफ़र शुरू हो। ओ भाई, समझा? शाहज़ेब, क्या हो गया? सो जाओ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
अशहदु अन